Good evening. Good evening to all. ओमकार ତମେ ସେଦିନ କଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ ଅଛି ନା ତାପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ମାନେ ଉପରେ ବି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସୁନି ମୁଁ ଦେଖି ପାରିନଥିଲି ପରେ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମାନେ ତମେ ବି ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲ କାଲି ବି ପଚାରିଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ବଟ୍ ତମେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲ ବଟ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି କଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ मैम मैथमेटिक्स ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ପଚାରିଥିଲି। ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ନା नो मैम सीसी ରେ सीसी ସିସିର ରୁହ ଦେଖୁଛି କଣ ସେଇଟା ମାନେ କଣ କହିଲ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବେସିସ୍ କରିକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଥିଲା ତାର ମାନେ ଯେମିତି ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ବେଶୀ ମାନେ ଘୋଷା ମେଥଡ କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବା ହଲିଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ବେଶୀ ଦିଆଯିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଉପରେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଇକି ହେଇଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମ ବେଳକୁ ବି ଏତେ ତମ ବେଳକୁ ସିଲାବସ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆମକୁ ତ ପଢେଇନି ତଥାପି ଟିକେ ଦେଖିଦବ ଇଣ୍ଟରନେଟ ରୁ କୋଉ ସୋର୍ସ ରୁ ବଟ୍ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନେ ଯୋଉ ଓଟିଟି ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବ ତ ରୋଟ୍ ମେଥଡ କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ବା ଟୁଲ୍ସ ସେଗୁଡାକୁ ୟୁଜ କରିକି ତାର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଥିଲା ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ୟୁନିଟ୍ 4 ପଢିବା ଆଉ କଣ तो यूनिट 4 କହିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଫର ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ସେଗୁଡାକ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ Micro teaching is one of the most recent trend in teaching education program.
which aim at the improvement of teaching ability of the student teacher। तो माने से कहछि कि जो स्टूडेंट टीचर रहिले माने जो माने बीएड करछंती बीएड पिला हो कि सीटी कि डीएलईडी ए सब पिला जो रहिले तांकर होछि माने कोन तांको टीचिंग एबिलिटी टाको इम्प्रूव करिया ପାଇଁ बिकॉज से माने भी स्टूडेंट ना तांको तो सेमती किछ एक्सपीरियंस थाए एक्सपीरियंस बट ऑफिशियली जदी देखिबा को जिबा जदी जने सीटी करिनी डी सीटी और डीएलईडी सेम बा बीएड करिनी तो से तो एलिजिबल नुह ना तो ऑफिशियली एलिजिबल को माने से पिला माने तो तांकर केमती टीचिंग टा इम्प्रूव हबो केमती से जो स्किल टाको से जानि परिबे ता ताको माने सॉरी से जो स्किल टाको इम्प्रूव करबा जो मेथड टा यूज हुए सेटा कहूची माइक्रो टीचिंग कहा जाए। Micro teaching was first introduced by Professor A.W. Dewitt Allen of Stanford University। जो प्रोफेसर रहिले A.W. डोइट एलन माने जे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थिले सी माइक्रो टीचिंग रो फर्स्ट इंट्रोडक्शन करिथिले। तांको पे माइक्रो टीचिंग एक्जिस्टेंस को आर एम होची कोन the fundamental aim of micro teaching is to improve the teaching ability of student teacher। तो तार fundamental aim होची ये जो student teacher रहिले तांकर teaching ability को improve करेबो at the training itself by improving the teaching। at the training बा जो से बीएड लास्ट बेलू कहते ट्रेनिंग पीरियड दियंती ना गोटे दिन क्लास करने को सेमती किसी करना हाँ माने से जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग माने कौन माने से माने जिबे गोटे दी दिन पाई स्कूल रे पिला मन को पढ़े के आसीबे आ तो जो द्वारा तांको टीचिंग स्किल टा इंप्रूव होइते। तो तार फंडामेंटल माने माइक्रो टीचिंग रो फंडामेंटल एम होची कोन ना कि जो स्टूडेंट टीचर रहिले तांकर टीचिंग एबिलिटी को इंप्रूव करेबो। Then I meaning and definition of micro teaching। A set of related teaching acts or behaviors performed with an intention to facilitate pupil learning can be called as teaching skill। जैसे कुछ कि set of related teaching acts माने teaching acts related teaching acts set of teaching acts करना जेमती कि teaching गोटे पढ़ेबो जेमती ब्लैक बोर्ड रे पढ़ेले कि अदर मेथड की यूज करछि कि होची किछि करिकुलम एक्टिविटी थ्रू रे पढ़ौछंती कि के प्लेइंग मेथड रे पढ़ौछंती तो सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट बहुत सारे टीचिंग एक्ट्स जो गुडा रहले से गुडी को परफॉर्म करबा माने से गुडा को करिबा with an intention to facilitate pupil learning। तो pupil learning को facilitate करिया को बा पिला माने जेमती तांको पई से पाठ पढ़ाटा कोन हे पारे माने पर्पसफुल रही परिबो तांको तांको पई लाभदायक हबो सेति पई से जो एक्ट्स गुडा को से सेट ऑफ एक्ट गुडा को कह जाउची कि टीचिंग स्किल। Micro teaching is defined as system of control practice that make it possible to concentrate on specific teaching behavior। जैसे कुछ कि micro teaching is defined as the micro teaching हमें कहा कहबे ना system of control practice that make it possible to concentrate on specific teaching behavior। तो specific teaching behavior माने मुझे एमती कहली जने टीचर एमती पढ़ौछन सेमती पढ़ौछन सेटा सेट ऑफ टीचिंग एक्ट ना तो से जो जने जहाँ भी पढ़ौछे माने सपोज तमे जने टीचर हलो तमे पढ़ौछ पिला मानकु विजुअलाइज मेथड रे बा इलस्ट्रेशन मेथड तो सेई स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर रे कोन हबो ना ओनली ता ऊपर ही कंसंट्रेट करिवो आ कोन हबो ना से टीचिंग से पर्टिकुलर टीचिंग मेथड को कंसंट्रेट करके माने ता ऊपर कंसंट्रेट करिवो जो द्वारा कि पिला मानन को
ପାଇଁ ଇଜି ହବ ବୁଝିବାଟା ଆଉ। To practice teaching and to practice teaching under controlled condition। ଆଉ କଣ ନା ଟିଚିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ କଣ ନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଣ୍ଡରରେ, ମାନେ ତାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ ର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଥିବ କି ତାର ସିଚୁଏସନ ଜଣେ ଟିଚର ସେମିତି ହିଁ ବନେଇଥିବ ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହିବ ଆମର ଯୋଉ ପାଠ ପଢାଟା। कंट्रोल कंडीशन माने एनी काइंड ऑफ कंडीशन जोटा कि टीचर बनेइथिबे। एटा किए कहले ना आलेन एंड इव। देन अछि एनके जंगीरा एंड अजीत सिंह। कौन कहले ना माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग सेटिंग फॉर द स्टूडेंट टीचर where complexity of normal classroom teaching are reduced by following these steps। तो से कहले कि माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग सेटिंग फॉर द स्टूडेंट टीचर। तो स्टूडेंट टीचर मान गोटे ट्रेनिंग सेट करें जो कौन हुए ना कम्प्लेक्सिटी, नॉर्मल क्लासरूम रो कम्प्लेक्सिटी टा रिड्यूस हो जाए। माने सपोज क्लास रे बहुत सारा पिला अछंती, प्रॉब्लम होची जने टीचर को हैंडल करिया को। गोटे क्लास रे 180 ରୁ 100 पिला अछंती, छोट छोट पिला अछंती, से माने कोन क्लासरूम को क्लासरूम हिसाब रे नेबे ना, क्लासरूम रो एनवायरनमेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट भलिया रहइबनी। तो सेटा टीचर को भीतर टीचर को पाई ट्रेनिंग सेटिंग करते, माने से माने सेही जेमिति कि टीचर माने सेही वे रे ट्रेंड हे परिबे कि क्लासरूम रो कम्प्लेक्सिटी टाको सी कोन करि परिबे ना रिड्यूस कर परिबे। रिड्यूस बाय बा को द्वारा रिड्यूस करके देना प्रैक्टिसिंग वन कंपोनेंट स्किल एट ए टाइम। तो गोटे टाइम रे गोटे पर्टिकुलर थिंग ऊपरे कंसंट्रेट करी ताको प्रैक्टिस करे। देन अच्छे लिमिटिंग द कंटेंट टू ए सिंगल कंसेप्ट। तो बहुत सारा जिनस अच्छे गोटे सब्जेक्ट भितर पढ़ेबा को, तो आजी पाई बा एई मोमेंट पाई बा एतिके सर्टन टाइम पीरियड भितर 30 मिनिट भितर के 45 मिनिट भितर के को कांसेप्ट टाको से पढ़े पारिबे, केती मात्रा रे पढ़े पारिबे, तो ता पाई गोटे लिमिट सेट करिवे। तो से कहछि कि एठी कंटेंट को सिंगल कांसेप्ट माने सिंगल कांसेप्ट जाए ही लिमिट सेट करिवे। देन आछि रिड्यूसिंग द साइज टू 10 to 15 pupils। तो साइज जोटे क्लासरूम रे बहुत सारा पिला अछंती, तो ताको रिड्यूस करके 10 to 15 स्टूडेंट भितर ताको लिमिटाइज करते। एंड रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ द लेसन टू 5 to 10 मिनट। आउ लेसन रे ड्यूरेशन भी कौन करि पारे ना 5 ରୁ 10 मिनिट से भितर सेटा को रखे। जेतु से कहले कि लिमिटिंग द कंटेंट टू ए सिंगल कॉन्सेप्ट रोज माने केते थिबो अल्प किछि थिबो तो ताको पढ़े पारे छै, तो ताको 5 to 10 मिनिट्स रे 15 ରୁ 10 जन पिला को पढ़ेबे। तो अछि माइक्रो टीचिंग साइकिल। तो अछि माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग साइकिल रे कोन रहउछि फर्स्ट प्लानिंग। तो टीचर फर्स्ट प्लानिंग करके आछंती एमते एमते पढ़ेबे बोली प्लानिंग कर देछंती। तापर अछि टीचिंग, टीचिंग करेले पढ़ेले पिलांको तो फीडबैक नेले। तो फीडबैक नेले किछ पिला भल से बुझ जाइथिबे, किछ पिलांको मन रे टिके टिके डाउट्स थिबो, किछ पिला माने टोटली बुझ नथि। तो पुनी से कोन कले ना री प्लानिंग कले, पुनी प्लानिंग कले केमते पढ़ेबे। देन री टीचिंग कले, आउथरे पढ़ेले, देन री फीडबैक, आउथरे फीडबैक नेले कि पिला माने बुझ पाले कि नहीं। देन अछि कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। The components of micro teaching under कौन जो है टाइम 5 to 10 मिनट। तो टाइम लिमिट रही 5 to 10 मिनट्स भितर। कंटेंट दैट इज स्मॉल कॉन्सेप्ट, छोट कॉन्सेप्ट को नहीं कि 5-10 मिनट रे छोट छोट कॉन्सेप्ट ही पढ़े हम, तो छोट कॉन्सेप्ट नहीं। स्टूडेंट 5 to 10 नंबर, 5 to 10 नंबर स्टूडेंट ऊपर देइछि 10 to 15, 10 to 15 भी लिख परबो। देन अछि ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हाँ तापर जेमति कि हमें पढ़िले माइक्रो टीचिंग करना स्टूडेंट टीचर मन को भाई ट्रेनिंग सेट करे। तापर रोची ट्रेनिंग स्किल, तांको स्किल केमति रोची, प्रोसेस पढ़ेबार प्रोसेस कोन, ए सब साइकिल अंडर जेमति प्लानिंग, प्लानिंग अंडर ए सब जो प्रोसेस, लर्निंग एंड फीडबैक। तो जेहेतु से माने स्टूडेंट टीचर से माने भी लर्न करछन ना, से माने तो माने
पूरा से प्रवीण हो जाए रहा फीडबैक ये सब कंपोनेंट रहा जरूरी नुह कि गुड़ाक सीरियल वाइज रहा यूज ऑफ माइक्रो टीचिंग रो यूज केमती होची माइक्रो टीचिंग डेवलप्स द टीचिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टीचर इन द ट्रेनिंग पीरियड इटसेल्फ बाय इंप्रूविंग द टीचिंग स्किल तो आमर जो स्टूडेंट टीचर रहिले ए ट्रेनिंग पीरियड रे तांकर करना टीचिंग स्किल टाको इंप्रूव करके टीचिंग एबिलिटी को डेवलप करोची It helps in reducing the complexity of the normal classroom teaching like class size, duration of lesson. जो हम ଏବେ पढ़िले class size को minimize करा जाउची 10 to 15 duration को 5 to 10 रखा जाउची lesson रे सेटा कोन करूची ना ओवरऑल क्लासरूम टीचिंग रो जो complexity टा रहउची ताको reduce करूची हाँ कौन पचारछा हेलो मैम हाँ हेलो हाँ कुह मैम आपण जल्दी पढ़े दउछंती तो माने बुझी होनी अच्छा कोठी बुझ पारलानी मैम ये फास्ट जोड़ा कहले ये जो माइक्रो टीचिंग तारो फास्ट टा बुझी हलानी अच्छा हो धीरे से Micro sorry micro teaching develops the teaching ability तो माइक्रो टीचिंग कौन करे ना टीचिंग एबिलिटी को डेवलप करे ऑफ स्टूडेंट टीचर माने जान लो जो माने बीएड ट्रेनिंग पीरियड रे रहउचंती माने बीएड करचंती कि जो माने सीटी करूचंती बा डीएलईडी करूचंती तो तांकर कोन ना डेवलप करूची टीचिंग एबिलिटी तांको टीचिंग एबिलिटी टाको बा से माने टीचिंग रे केते तांकर नॉलेज अच्छे बा से केमिति पढ़ाउचंती से जो क्वालिटी को डेवलप कराउची इन द ट्रेनिंग पीरियड ए ट्रेनिंग पीरियड टा बा तमे जो माइक्रो टीचिंग लिखुच स्कूल रे जाई कि गोटे दी दिन पई पढ़े के आछो से ट्रेनिंग थ्रो रे कोन कराउची ना टीचिंग एबिलिटी टा को डेवलप कराउची बाय इंप्रूविंग देयर टीचिंग स्किल तांको टीचिंग स्किल गुडा को से केमिति पढ़ाउचंती से स्किल टा को डेवलप करे कि टीचिंग एबिलिटी टाको डेवलप करोची it helps in reducing the complexity of normal classroom teaching like classroom size duration of lesson it helps in reducing the complexity तो classroom रो जहाँ complexity रोची बा जो द्वारा पिला माने स्टूडेंट और टीचर को भितरे ठीक से कम्युनिकेशन हे पारुनी माने टीचिंग रे कम्युनिकेशन हे पारनी बा टीचर पढ़ौचंती ठीक ठाक बट स्टूडेंट बुझी पारु नाहंती कोन केमिति ना reducing complexity of the normal classroom गोटे normal classroom रो complexity को reduce करूची like classroom size duration of lesson etc classroom size ଏବେ ଆମେ पढ़िले कि जो क्लासरूम रो केमती सेटिंग होची ना जो पिलांक संख्या 10 रु 15 जन रहबा दरकार सेमती क्लासरूम साइज को रिड्यूस कला देन अछि ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेसन को सेट कला ड्यूरेशन जेमती कि गोटे क्लास रो मिनिमम थाए केते 45 मिनिट्स ता मिनिमम थाए बट से जेतु से कोन कले ना सिलेक्ट कले सिंगल कांसेप्ट लिमिटेशन ताकर रहिला कि सिंगल कांसेप्ट ऊपर से फोकस करबे माइक्रो टीचिंग तो सेटा ड्यूरेशन टा कमी गला 5 रु 10 मिनिट हे गला तो जेहेतु क्लासरूम साइज एबे कम अछि पिला कम अछंती और ड्यूरेशन टाइम रे गोटे छोट कांसेप्ट बुझेले तो क्लासरूम रो कॉम्प्लेक्सिटी भी कम गला क्लासरूम रे जो कॉम्प्लेक्सिटी होउथला टीचर को पई एते गुडे पिला पढु नाहंती सुनु नाहंती बस स्टूडेंट को भीतर भी डिस्टरबेंस होतले सेटा होबन माइक्रो टीचिंग प्रोवाइडिंग इकोनॉमी इन मास्टरिंग द टीचिंग स्किल तो से कौन कहछि ना टीचिंग स्किल रे मास्टरिंग करबा द्वारा से तुमको इकोनॉमी भी प्रोवाइड करछि जेतो तमे टीचिंग स्किल रे बे मास्टर हे गला माने सिथरे प्रवीण हे गला तो तमे अबे सेल्फ डिपेंड हे परिबो तो तमे इकोनॉमी रे भी हेल्प करियो इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ स्टूडेंट टीचर as well as the pupils तो both स्टूडेंट टीचर माने तमे माने रहिलो कि pupil बा तमे जाको पढौछ बोथ कर टाइम आ एनर्जी सेव हे गल
जेहेतु छोट छोट सेक्शन रे डिवाइड कर दिया गला तो टाइम भी कंज्यूम हो गला आउ एनर्जी भी एबे टीचर मान को चिल्लेबा को पड़िबनी ना बहुत जे पछाड़े सुना जाउची कि नहीं काई पाटी करछ ये सब इरिटेट भी हबनी आराम से स्मूथली क्लासरूम रो जहाँ भी एम थिबो सेटा अचीव हो देन आसी मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक टास्क से कुछ के टीचर का बिहेवियर रे मॉडिफिकेशन आने जेहेतु आगुरी से जानी नथिले तांको पाखरे क्लासरूम नथिला सेटा एक्सपीरियंस करनथिले एबे एक्सपीरियंस कले से जानिले निजे माने फील कले जे गोटे क्लासरूम रे से कौन करि परिबे पिला मान को से तो केमिति बिहेव करिवे तो तांको मॉडिफाई तांको बिहेवियर रे भी मॉडिफिकेशन आसिला आ स्पेसिफिक टास्क भी से लर्न करि पारे बा जोटा पढ़ौचंती ता ऊपर तांकर नॉलेज भी एनहांस हो पारे आर द फंडामेंटल आउटकम्स ऑफ माइक्रो टीचिंग तो से कहूँ माइक्रो टीचिंग ए दुटा हूँ फंडामेंटल आउटकम फर्स्ट कौन हुए ना टीचर का बिहेवियर मॉडिफाई होता है आउ लर्निंग स्पेसिफिक टास्क ऊपर भी लर्निंग तांकर मॉडिफाई होता है देन आसी माइक्रो टीचिंग स्किल तो माइक्रो टीचिंग स्किल अंडर रे कौन कौन कही ना स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन गोटे लेसन जो पढ़ेबा को जाउछंती तांको केमती पिलांक आगे इंट्रोड्यूस करेबे the behaviors include that is the components of skill of introducing a lesson are से कहूँ कि कौन बिहेवियर रहिबा बा कौन जो हमर इंट्रोड्यूसिंग स्किल रहिला गोटे लेसन को इंट्रोड्यूस करिवार अछि सेति कौन स्किल दरकार यूजिंग प्रीवियस नॉलेज तो जहाँ पढ़ेबे एबे स्टूडेंट टीचर हमर जे रहिले जहाँ पढ़ेबे ता रिलेटेड तंगर प्रीवियस नॉलेज कौन अछि यूजिंग appropriate device ताको पढ़ेबा पई जहाँ भी डिवाइस दरकार होतबो लैकिंग ऑफ कंटिन्यूटी कोठी कंटिन्यूटी जेतोले क्लास कंटिन्यू होची बट लेसन कंटिन्यू होची कोठी लैक हे गला से स्किलटा भी माने कोठी लैक हे गला सेटा भी जानिबा दरकार देन आसी अटरिंग इरिलेवेंट स्टेटमेंट जो गुड़ाक इरिलेवेंट बा अनरिलेटेड रोची जेमती कि तमे जदि जियोमेट्री माने एबे अलजेब्रा पढ़ौछ से अलजेब्रा स्टार्ट करछ देन आ गोटे टॉपिक अछि ट्रिगोनोमेट्री तमे अलजेब्रा लेसन को इंट्रोड्यूस करिके ट्रिगोनोमेट्री विषय कहबो सेटा हबो कि हबनी तो तुम अलजेब्रा विषय पढ़िबार अछि बट जदि के पचारू कि एटा कोरिलेट तमे ताको सेक्शन वाइज डिवाइड कर परथो दरकार अनरिलेटेड स्टेटमेंट जो गुड़ा रहिला ताको आइडेंटिफाई कर परथो दरकार ताको पार्ट माने पार्ट अवे कर परथो दरकार ऑटरिंग माने कहबो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग ए कांसेप्ट गोटे कांसेप्ट को एबे लेसन को इंट्रोड्यूस कर देला तो लेसन अंडर रे जहाँ भी कांसेप्ट अछि ताको केमते एक्सप्लेन करियो तार स्किल the skill of explaining may be defined as the art of learning the use of interrelated appropriate statements by the teacher से कहूँ कि एक्सप्लेनिंग करिबार स्किल टा केमती डिफाइन हे परिबो ना द आर्ट ऑफ लर्निंग माने सिखिबार आर्ट तुम फर्स्ट कौन शिखिछ केते कौन शिखिछ ता ऊपर डिपेंड करे देन आछि द यूज ऑफ इंटररिलेटेड एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को स्टेटमेंट गुड़ा ता सहित रिलेटेड अछि तम प्रीवियस नॉलेज जहाँ अछि तम पोस्ट नॉलेज जहाँ अछि माने एबे जहाँ नॉलेज तमे पाइलो बा जहाँ से जो सब्जेक्ट रे अछि ता भितरे इंटर रिलेट कर पाथो दरकार सेमिति स्टेटमेंट देबा दरकार माने जो द्वारा कि पिला मन को से कांसेप्ट बुझे बाय द टीचर को द्वारा टेबल स्टेटमेंट देबा दरकार एंड कौन पाई ना फॉर मेकिंग द पीपल अंडरस्टैंड द डिजायर्ड कांसेप्ट फेनोमेनन और प्रिंसिपल जो कांसेप्ट अछि बा जो फेनोमेनन और प्रिंसिपल टा जो रहउची जोटा कि तमे पढ़ौछ या द्वारा कौन करबे ना जो स्टूडेंट माने रहले से माने इजीली बुझी पाए Then actually the skill of explaining a concept or phenomenon consists of two types of behavior.
से कହୁची कि ए जो गोटे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करबा ए जो फेनोमेनन कौन रोचे ना ता अंडर रे टू टाइप रो बिहेवियर आस फर्स्ट होची डिजायरेबल एंड सेकंड होची अनडिजायरेबल डिजायरेबल आ अनडिजायरेबल दीटा बिहेवियर आछी ता अंडर रे तो ताको ता भितर किछटा पॉइंट्स अछि फर्स्ट अछि डिजायरेबल बिहेवियर यूजिंग एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट से कोची जो गुडा को एप्रोप्रिएट रहउची माने जो गुडा को दरकारी हमर गोटे पढ़े जहाँ भी पढ़ेवा स्टार्ट कले बा गोटे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करबा को स्टार्ट कले ता ता ऊपर गोटे एप्रोप्रिएट बिगिनिंग दबा दरकार माने जोटा कि वैलिड हेथिबो से कॉन्सेप्ट पाई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कौन ना से रिलेटेड स्टेटमेंट बट एठी कौन ना यूजिंग इरिलेवेंट स्टेटमेंट अनडिजायरेबल बिहेवियर माने से यूज कर देबे जोड़ा को रिलेटेड नुह याडू साडू स्टेटमेंट से सब कहबा को लागियो देन डिजायरेबल बिहेवियर कौन अछि ना यूजिंग एक्सप्लेनिंग स्किल एक्सप्लेनिंग स्किल यूज करबे माने जेते सिंपल लैंग्वेज रे जेते भलो भाबरे जेते विस्तारित भाबरे ताको एक्सप्लेन करि परिबे जो द्वारा कि पिला माने इजीली बुझि पारे एटी कौन ना लैकिंग कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट तो से गोटे स्टेटमेंट कहउचंती कहबाकू लागिचंती अधारू तांको से भूली गले कि से कॉन्सेप्ट से जानी ना तो ता मझरे आ गोटे अलगा लाइन आनी के जोड़ी दउचंती बा जो लाइन टा कंटिन्यू करूथिले सेटा मझरे ब्रेक हे गला सेटा को इनकम्प्लीट रहिला तो कंटिन्यूटी लैक हे गला देन डिजायरेबल बिहेवियर कौन अछि ना कवरिंग एसेंशियल पॉइंट से जो कॉन्सेप्ट पढ़ौचंती सेतरे कौन एसेंशियल पॉइंट रही कौन नेसेसरी पॉइंट रही सेगुड़ा को कवर करियो इट होची लैकिंग फ्लुएंसी माने से ना से एसेंशियल पॉइंट को कवर कले ना एक्यूरेटली कले ना कंटीन्यूअस कले बोथ नेदर एक्यूरेटली नॉर कंटीन्यूअसली देन डिजायरेबल बिहेवियर अछि टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग तो पिला माने केते बुझिले केते न बुझिले ताको भी टीचर टेस्ट करिवे ताको नै कि नेक्स्ट स्टेप नेबे ना कि पिला माने जदि बुझिथिबे तो से माने कोन मूव ऑन करिवे जदि बुझि नथिबे तो आउ थरे तांको पई रीटीचिंग करेबे तो एठी कोन ना यूज ऑफ वोकैबुलरी नॉट नोन टू द पीपल तो टीचर तांको भितरे रहबे से जहा बुझचंती से कहिदेले पिला माने बुझिले कि न बुझिले तांकर किछि जाय आसे तो एमती भोकाबुलारी एमती वर्ड यूज करेंगे जोटा अप्रोप्रिएट से जानी तो से कहीदेले पिला माने बुझी पारे न बुझी पारे किसी लेन देन नहीं देन अच्छे स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन रे कौन कहला ना स्टिमुलस वेरिएशन माने से जाबे माने पढ़ौचंती बा जहा पढ़ौचंती गोटे ये हैला सेथरे किछि चेंजेस आछि कि ताको नै स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन इंक्लूड द बिहेवियर लाइक स्टिमुलस वेरिएशन रे जो स्किल रहला से गुडा को ए किछिटा फॉलोइंग बिहेवियर को नै कि कोन रहछि ना मूवमेंट तो टीचर रहले तांको मूवमेंट तांको गेस्चर बा तांको गेस्चर माने बॉडी मूवमेंट देन अच्छी चेंज इन स्पीच पैटर्न से जो पैटर्न रे कहउचंती तांको कथाबार्ता रे केमती चेंजेस अछि देन फोकसिंग से केते फोकस रहउचंती चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल से पिला मन को से केते इंटरेक्शन करचंती केमिति इंटरेक्शन करचंती एमती माने अप्रोप्रिएट वर्ड बेस करचंती बुझि पालु ना नहीं यदि न बुझिले नहीं तो मु केथर कहबे एमिति सब न हो टीचर भी कहंती कि नो प्रॉब्लम जेथर बुझिबार अछि मते पछारि दैट्स अप्रोप्रिएट किंतु पिला मानको सहित र्यूड बिहेव करबा सेटा तो अप्रोप्रिएट ना तो इंटरेक्शन स्टाइल केते चेंज आछे ऐसे पॉजिंग एंड ओरल विजुअल स्विच तो कोठी रहिबार अछि एमते कि कंटीन्यूअसली त हम गाई परिबानी ना तो छोटो छोटो माने कोन गोटे कांसेप्ट को छोटो छोटो सेक्शन रे डिवाइड कले एते पढिले तापर पिला मानको फीडबैक नबा बुझेला कि नहीं
बा ओरल विजुअल्स जहाँ भी माने तांको पाखरे कौन ऑडियो विजुअल डिवाइस थिबो ताको सेथिरे भी माने केतेबेले पॉज करिवार अछि केतेबेले पिलांक सहित रहिकी इंटरेक्शन करिवार अछि सेट पॉजिंग एंड ओरल विजुअल स्विच skill of illustrating with illustrating से दिन के जन पचार थिले सेम एग्जांपल बट माने तमे देखि पारथुओ विजुअलाइज कर पारथुओ कि फील कर पारथुओ तम आगे गोटे पिक्चर दिया गला कि हो कि स्मार्ट बोर्ड रे तम पई किछि प्ले करा गला से गुडा कहछि इलस्ट्रेशन skill of illustrating with example may be defined as the art of judicious selection and proper presentation. से कहछि कि illustration जो स्किल टा रहला सेटा होछि आर्ट ऑफ जुडिशियस सिलेक्शन जोड़ा का जस्टिफाइड जो सिलेक्शन गुड़ा माने मु गोटे जिनस पढुछि ताकू नै कि मु कोन तुमको देखै परिबी तुमको कोन विजुअलाइज करै परिबी से जुडिशियस बा जस्टिफिकेबल सिलेक्शन गुड़ा को एंड प्रॉपर वे रे प्रेजेंट करबा जेमति कि तम पई इजी हबो बुझिबा पई तमे जानि परबे जे हां ई जिंस डे बोली of the suitable example माने suitable example जोड़ा कि जो concept टा पढ़ा होछि ताकू नै कि कोन suitable example रहला in order to generalize a concept गोटे concept को generalize करिया पई ता रिलेटेड कोटा सबटु suitable example हबो ताकू presentation कर generalize concept idea or principle or same concept idea or principle को जेमती तम आगे एमती भाव प्रेजेंटेशन करवा जेमती तमे बुझी पाए with a view to its understanding and proper application तो with a view माने से माने हम कहले कि विजुअलाइज करवा जेमती कि बुझी परबा और तार प्रॉपर एप्लीकेशन कर परबा the main component of the skill of illustrating with examples can be named as below तो कहछि कि जेमती कि ऊपर जो स्किल गुडा रहले तार किछि किछि कंपोनेंट्स थिले सेमती इलस्ट्रेटिंग रे भी किछि इलस्ट्रेटिंग अंडर रे भी किछि कंपोनेंट्स जाउछि जोडा कि कोन ना फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट एग्जाम the relevant example suitable example कौन रहबो related example कौन रहबो तब formulate करबा ताको create करबा then she formulate simple example आ कोन ना simple example formulate करबा जोगुडा को सब पिला बुझी परिबे ना कि आम हिसाब रे गोटे example दे परिबा जो पिला माने भलो थिबे पाठ पढारे से माने बुझिबे बट जो माने टिके लो रहउचंती जो माने टिके स्लो रहउचंती से माने तको आकर करि परिबेनी बुझी परिबेनी कोन एटा बोली तो सिंपल एग्जांपल फॉर्मुलेट करबा देन से फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो एग्जांपल ले इंटरेस्ट आस्तबे ताको गोटे हरिण देखले हरिण रे दौड़ुथबो तो सीनरी आसिला इमेज आसिला ताको सेटा इंटरेस्ट लागबो से बेला इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्रिएट कर देन से यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जांपल तो एग्जांपल पे आ कोन करबे ना एप्रोप्रिएट मीडिया जहाँ भी एप्रोप्रिएट मीडिया रहबे जहाँ भी एप्रोप्रिएट इमेज रहबो सेगुडा को हमें यूज करो जैसे कि स्किल ऑफ क्वेश्चन about skill of questioning. Questioning is an important teaching skill that a teacher must learn. तो questioning टा होची गोटे कोन ना क्वेश्चन करबाटा होची गोटे टीचिंग स्किल जहाँ भी रहउची टीचिंग स्किल अंडर रे जो स्किल रहउची ता भीतर क्वेश्चनिंग भी गोटे इम्पोर्टेंट स्किल जोड़ा कि टीचर माने निहाती जानिबा दरकार कारण क्वेश्चन कले ही कम्युनिकेट कले ही से जानि परिबे को पिलाटा केते बुझीची ताको आ केते बुझिबार अछि one of the aspect of this skill is the fluency in question तो गोटे एस्पेक्ट कहन ना क्वेश्चनिंग रो फ्लुएंसी केते रहउची माने गोटे जने टीचर को को माने केमिति जने स्टूडेंट सहित कम्युनिकेट कर परचंदी ताको क्वेश्चन कर परचंदी केते फ्लुएंसी रहउची माने पढिले ता भीतर संगे संग गोटे क्वेश्चन बाहर कर देले ताको पछे देले
which means the rate of meaningful questions put per unit time. तो यूनिट टाइम रे करना एबे पढ़ेली तो एबे संगे संग गोटे जहाँ भी पढ़ेले ताको रिलेटेड किछि क्वेश्चन आसी दि तीन चारटा क्वेश्चन आसी तो संगे संग ताको आ मीनिंगफुल भी हेथिबा दरकार आज बाजे क्वेश्चन जहाँ भी गोटे लाइन पढ़ेला बने एहा गोटे बाघ एहा गोटे कौन माने कौन मीनिंगफुल क्वेश्चन हेथिबा दरकार जोटा कि वैलिड हेथिबा दरकार किछि भी त आमे पचारि परिबानी ना जो रिलेटेड पढ़ौଛନ୍ତି से रिलेटेड किछि क्वेश्चन पचारिबा पर यूनिट टाइम बा गोटे स्पेसिफिक टाइम रे जेति पढ़ा हला ताकू नै कि केते फ्लुएंसी रे केते स्पीड रे केते क्वेश्चन पचारि परछंती दैट्स द रेट ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चन asked. The meaningful question are those which possesses structure, process and product. तो से कहछि कि मीनिंगफुल क्वेश्चन गुड़ा जो गुड़ा करे स्ट्रक्चर थिबो प्रोसेस थिबो और प्रोडक्ट भी मिलतबो तो स्ट्रक्चर कोन ना ग्रामेटिकल करेक्टनेस conciseness then अच्छी relevancy then अच्छी specificity तो आमर कहले कि जो मीनिंगफुल हाँ मीनिंगफुल क्वेश्चन को गुड़ा कहथिबो ना जार किछि स्ट्रक्चर थिबो प्रोसेस थिबो और प्रोडक्ट भी मिलुथबो तो स्ट्रक्चर ताकू नै कि ना ग्रामेटिकल करेक्टनेस कोन अछि कंसाइजनेस रोची रिलेवेंसी और स्पेसिफिकेशन then process under करना speed of asking question और voice of the teacher जैसे कुछ के ଆଉ process under कौन रही ना speed of question के तो speed है और teacher को voice है then actually product means the answer or response given by the pupil then product रे कौन रहिबो obviously output जोटा कि पिलांको ऊपर डिपेंड करे तांकर केते से कौन आंसर देले then actually skill of reinforcement तो कहछि कि एबे कोन ना अरे तो से कौन गला हमर पहले स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग तो क्वेश्चनिंग स्किल गल तापरे आछि एफ रे 6 पॉइंट रे स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट so reinforcement the skill of reinforcement involves the teacher to use more and more positive reinforces and to decrease the use of negative reinforces so that the people's participation in the class is maximum. तो से कहछि कि जो रेनफोर्समेंट रे कोन इन्वॉल्व होछि ना जेते अधिक रु अधिक से यूज कर परिबे रेनफोर्स आउ जेते पॉजिटिव रेनफोर्स जहाँ भी रही जहाँ भी दरकारी जिनस रही सेगुड़ा को यूज होथबो आ जो गुड़ाक दरकार नहीं से कॉन्सेप्ट पाई जो कंटेंट गुड़ाक से गुड़ाक से ताको रिड्यूस कर पाथबो द पीपल्स पार्टिसिपेशन सेथिबे कोन दरकार ना पिलानको पार्टिसिपेशन दरकार जो द्वारा कि सॉरी सॉरी भूल गई माने
रेनफोर्समेंट कौन होची ना जेतिक पॉजिटिव रेनफोर्सेस बा जहाँ भी दरकारी होची सेगुड़ाक आड है आ जोगुड़ाक अदरकारी सेगुड़ाक कौन रिड्यूस कर दिया गला तो सेठी कौन होची ना पिपल्स मानकर कौन बढ़िबो पार्टिसिपेशन बढ़िबो जो द्वारा कि पिलामाननको पार्टिसिपेशन मैक्सिमाइज हे परिबो माने पिलामाने अधिक रु अधिक इंटरेस्टेड हेबे क्लासरूम रे पार्टिसिपेट कर then the skill of appropriate मैम use of tea मैडम रेनफोर्समेंट आउ थोड़े टिके बुझेई दियंतु बुझी हेलानी reinforcement स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट रो एग्जांपल देके टिके बुझेई दियंतु मैम sorry ता actually मीनिंग ता रेनफोर्समेंट मीनिंग टा भी बुझी होनी। मैडम ମୁଁ एग्जांपल गुटे देले ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହବ। ହଉ ଦଉଛି actually ସାର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲି। रेनफोर्समेंट माने सुदृढ़ीकरण जोटा कहते ହଁ ସେଇଟା। ସରି ସୁଦୃଢୀକରଣ। तो से कहे कि the skill of reinforcement involves the teacher to use more and more positive reinforces माने जो कॉन्सेप्ट गुड़ाक कौन दरकार तम फंडामेंटल को स्ट्रेंथेन करबा पई सेगुड़ाक हूँ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट तो से पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव रेनफोर्सेस तो से जो जो भी कॉन्सेप्ट गोटे कॉन्सेप्ट तुम पढ़ेले तो तुमको गोटे कॉन्सेप्ट पढ़ाला तो ता अंडर रे जहाँ भी पॉइंट्स रोची जहाँ भी स्टेप्स रोची एमिति पॉइंट बा स्टेप्स जो गुड़ाक तम नॉलेज को स्ट्रेंथेन कर परिबो सेगुड़ाक हूँ पॉजिटिव रेनफोर्स तो से पॉजिटिव रेनफोर्स को यूज करा हबो और जोगुड़ाक दरकार नहीं बेसी अननेसेसरी तो सेगुड़ाक कौन कराहब ना ताको बाहर कर दिया जिवो से कांसेप्ट रो ताहाले पिलामानक पार्टिसिपेशन मैक्सिमाइज हे परबो जोगुड़ाक दरकार नहीं सेतिर पिलामानक इंटरेस्ट भी आसबनी तो रखिए कौन लाभ तो ताको साइड कर देले पिलामानकर कौन पार्टिसिपेशन मैक्सिमाइज हे पारे then it's just skill of appropriate use of teaching learning materials but TLM जोगुड़ाक कहते जहाँ जहाँ यूज होची पढ़ेवा पे सेगुड़ाक TLM किछि भी इथे लाइक चॉक डस्टर हो कि तमरो विजुअलाइज पई प्रोजेक्टर होची teaching learning material which are also called as audio visual aids make the teaching interesting and effective and hence make the learning easy तो से कहे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो TLM रोचे जोगुड़ाक कौन ना ऑडियो विजुअल एड्स गुड़ाक जो जिनस गुड़ाक ऑडियो विजुअल एड कोडा हम ना प्रोजेक्टर जीव ऑडियो विजुअल एड रे कारण ताको कौन प्रेजेंट कले तमे विजुअलाइज भी करि परिबो आ तार ऑडियो भी सुनि परिबो मेक द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव तो जदि गोटे जिनस तुम आगे प्रेजेंट करा जाउची तमे ताको देखि पाछो ताको सुनि पाछो तुमको आहुरी इंटरेस्ट लागिवो आ सेटा कोन हबो ना टीचिंग भी इफेक्टिव हो तुमको इंटरेस्टिंग लागिला बोले तुम सेतिरे इन्वॉल्व रहिला तुम पढ़िला तो सेतिरे कोन हला एबे टीचिंग टा इफेक्टिव हला एंड हेंस मेक द लर्निंग इजी टीचिंग इफेक्टिव हला तो लर्निंग तुम पे ऑटोमेटिक इजी हे परिबो they are the tools in the hand of the teacher which make the teaching learning complete तो से गुड़ाक टीचर का पई टूल बा टीचर का पई वेपन्स भी कहि परिबा जो द्वारा कौन हबो ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा कंप्लीट हे परिबो every teacher should possess the skill of preparing appropriate teaching aids and also make use of them correctly तो से कहे कि सब टीचर पाखे जहाँ भी टीचिंग लर्निंग एड्स रोची बा टूल्स रोची ताको केमिति यूज करा जीवो ताको प्रॉपर यूज करिवार स्किल तांको पाखे रहिबा दरकार आ कौन करबे ना आ तारो केमिति यूज करंती से जानिथिबा दरकार आ ताको प्रॉपर वे रे यूज भी करि पारथिबा दरकार माने यूज केमिति सेटा को यूज करे जे से जिनसटा तार भी स्किल तांको पाखे थिबा दरकार आ ताको ठीक भाव से यूज भी कर पारथिबा दरकार
This skill include the following aspects जोड़ी रोची first रोची selection next preparation then presentation selection से choose करिवे ताको से presentation रे कौन रखिवे कौन न रखिवे then prepare करिवे total PPT then present करिवे then actually link practice and integration of skill. So integration of teaching skill may be defined as a process of selection, organization and utilization of different teaching skills. तो कुछ कि इंटीग्रेशन माने फास्ट जानछन्ती छोट छोट पार्ट को यूज करबा बा छोट छोट पार्ट को कनेक्ट करके गोटे बड़ जिंस बनेबा तो इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल डिफरेंट टीचिंग स्किल को गोटे सेट रे नेबा ताको इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल may be defined as a process of selection, organization and utilization. तो से कुछ कि एटा गोटे प्रोसेस जहाँ अंडर सिलेक्शन रहउची देन ऑर्गेनाइजेशन रहउची और यूटिलाइजेशन माने सिलेक्ट कले कांसेप्ट ताको ऑर्डरली ठीक वे रे ऑर्गेनाइज कले एंड देन यूटिलाइज कले बा प्रेजेंट कले त मगरे और पढेले अब डिफरेंट टीचिंग स्किल्स तो डिफरेंट टीचिंग स्किल रा पहला ने इंटीग्रेशन है to form an effective pattern for realizing the specified instructional objectives in a given teaching learning situation. तो से कहे कि जो माने टीचिंग स्किल रहिला तार इंटीग्रेशन हला केमती ना फर्स्ट सिलेक्शन हला देन ऑर्गेनाइजेशन हला देन यूटिलाइजेशन हला कम पाई ना गोटे इफेक्टिव पैटर्न तैयारी करिया पाई कहार ना गोटे स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट जोटा कि यूज करछन जोटा कि जो भी कौन स्किल गुड़ा को यूज होची तापन किछि टूल्स रहउची तार भी इफेक्टिव यूज पे से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट सॉरी माने से जो इंस्ट्रक्शनल जिनस रहले तार ऑब्जेक्टिविटीज को भी अचीव करिया पे गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस व सिचुएशन planning for instruction planning is essential on all spheres of life तो को भी सिचुएशन हो को भी स्टेट हो प्लानिंग हो essential proper planning in teaching leads to the successful realization of the objective तो कुछ के प्रॉपर प्लानिंग करबा द्वारा कौन है ना जो हमर होची टीचिंग ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल है परियो and helps in the proper utilization of the time रो proper utilization भी है परियो and the energy of teacher and learner माने टाइम आ एनर्जी दीटांकर प्रॉपर यूटिलाइजेशन है परियो सॉरी माने टीचर और लर्नर दी जनकर टाइम और एनर्जी रो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है परियो this planning is of three types year plan annual plan यूनिट प्लान और लेसन प्लान तो ईयर प्लान जोटा का ईयर थ्रू आउट द ईयर होची आ कोन यूनिट प्लान रोची और लेसन प्लान रोची तो यूनिट प्लान टा यूनिट वाइज और लेसन प्लान टा लेसन फर्स्ट देची ईयर प्लान रे इट इज द प्लान प्रिपेयर्ड बाय द टीचर इन द beginning of an academic year to teach the syllabus of subject prescribed for a class in the academic year. तो गोटे throughout the year माने गोटे academic year रे सपोज एटा 26 27 27 तो ए जो पूरा ईयर टा रहउची throughout the year तो कौन पढ़ा हबो को सब्जेक्ट इंक्लूड हबो कोडा एक्सक्लूड हबो तार गोटे प्रॉपर प्लान बना हबो बिगिनिंग ऑफ द ईयर माने ए कोर्स टा स्टार्ट हबा पूर्वरु प्रॉपर प्लानिंग बना हितबो सेटा को ईयर प्लान कहै while preparing the annual plan or year plan teacher has to keep in mind the following points तो जतबेले गोटे annual plan बा year plan बना हबो तो टीचर तांको माइंड रे ए सब फॉलोइंग स्टेप गुडा को रखिया दरकार
The total number of working days available for the teaching learning of the subject during the year. तो कौन कि टोटल वर्किंग डेज केते रहइबो कारण छुट्टी भी रहउची गवर्नमेंट छुट्टी भी रहउची किछि संडेज भी रहउची एमती सब हॉलीडेज को छाड़ी के बाकी किछि अदर फंक्शनल डे को छाड़ी के टोटल वर्किंग डे केते रहइबो सेटा टीचिंग लर्निंग ପାଇଁ टोटल वर्किंग डे केते रहइबो सेटा सेथिरे कौन हवा दरकार ना मेंशन हवा दरकार अच्छी टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स अवेलेबल फॉर टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट एटा तो थ्रू आउट एतिकी वर्किंग डे रहइबो तो सेतिकी वर्किंग डे हेबे टोटल सब्जेक्ट ପାଇଁ टोटल सब्जेक्ट अंडर रे किछि लेसन थिबो यूनिट थिबो तो ता ପାଇଁ किछि किछि डिवाइड हे जवा ना गोटे चैप्टर ପାଇଁ एतिकी डे कि सेति डे तो कहला ना गोटे सब्जेक्ट पढ़िबा ପାଇଁ टोटल नंबर ऑफ पीरियड एबे सेटा भी मेंशन हो बा डिसाइड हो देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट टू बी अचीव तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रहछि जा माने सब्जेक्ट गोटे पढ़ेबार जहाँ ऑब्जेक्टिव रहछि बा तार एम जहाँ रहछि जोटा के अचीव करिवार अछि सेटा भी मेंशन होबा दरकार और डिसाइड होबा दरकार नेक्स्ट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सिलेबस and the number of period allotted to each unit. से कोच के गोटे सिलेबस रे केते यूनिट रहइबो आ ता पई केते पीरियड बा केते क्लास अलॉट हबो the means and materials available for teaching learning of the subject. The means and materials माने तुमको जहाँ भी प्रोवाइड करा जो बुक्स तो नोट्स तो अदर जहाँ भी लर्निंग ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଗୁଡାକ ବି डिसाइड हबो the key point of preparation of year plan is unit से कुछ के key point in preparation of year plan is unit तो गोटे year plan को प्रिपेयर करिवार की पॉइंट होउची यूनिट हेलो कौन हाँ किछि नहीं किछि नहीं सॉक्स अच्छे unit plan is the plan prepared by the teacher before teaching a particular unit तो गोटे पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ेबा पूर्वरु गोटे यूनिट प्लान रे प्रिपेयर करे जे to complete the unit and achieve the prescribed objective of the unit तो माने गोटे यूनिट को कंप्लीट करिया पई आ तार ऑब्जेक्टिव बा तार एम को अचीव करिया पई गोटे यूनिट पढ़ेबा पूर्वरु यूनिट प्लान रे प्रिपेयर हो A unit is an outline of carefully selected subject matter which has been isolated because of its relationship to people need and interest. ये कहले ना sample कौन कहले ना unit टा कौन ना गोटे सब्जेक्ट रो आउटलाइन जोड़ा को जोड़ा कि केयरफुली सिलेक्ट हेइथिबो कि ए जिंस ए यूनिट अंडर रे आसीबो has been isolated माने
तार लिमिट फिक्स हो जाइथिबो एतिकी तार बाउंड्री फिक्स हो जाइथिबो कि एतिकी जिंस ए यूनिट भीतर आसीबो because of its relationship to pupil needs and interest माने पिला मान का आवश्यकता से इस चैप्टर को नहीं की आओ तांको इंटरेस्ट को नहीं की गोटे यूनिट डिसाइड होता है जे यूनिट अंडर रे कौन कौन सब्जेक्ट मैटर रहबो while preparing the unit plan teacher has to keep in mind the following points अब जते बेले गोटे यूनिट प्लान टे बना हबो सेतल टीचर का माइंड रे कोन रे दरकार objective to be achieved through the teaching of the unit तो से जो यूनिट टा पढ़ेइबे से यूनिट टा पढ़ेइबा द्वारा यूनिट थ्रू आउट द यूनिट से यूनिट टा पढ़ेइबा द्वारा कौन हबो ना से सब्जेक्ट रो ऑब्जेक्टिव अचीव हे परबा बा एम कौन कौन केते पढ़ेइबा दरकार पिला को जिंस बुझिबा नियति दरकार एउडा डिवाइडिंग द यूनिट इनटू मीनिंगफुल सब तो से जो यूनिट टा पढ़ौଛନ୍ତି ताको मीनिंगफुल सब यूनिट रे डिवाइड करबा दरकार बा ताको पार्ट पार्ट कर देबा दरकार जो द्वारा के सुविधा हबो पढ़ेबा पई भी आ बुझिबा पई allotting suitable periods to each सब यूनिट तो जो यूनिट को भी डिवाइड कर देले सब यूनिट हे गला तो ता पई सुइटेबल पीरियड बाय जति टाइम नबो से हिसाब रे केतना पीरियड लागियो सेति के अलॉट हबा दरकार selecting suitable teaching method and teaching learning material for teaching of the unit तो को मेथड रे पढ़ेले पिला माने भी बुझी परिबे इजीली आउ को टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज हबो एगुडा को केयरफुली सिलेक्ट करबा selecting appropriate method and tools of evaluation द unit गोटे यूनिट पढ़ेले ता ऊपर पिला माने केते नॉलेज गेन कले एबे इवैल्यूएट करिवे appropriate method unit test करिवे कि क्वेश्चनिंग थ्रू रे करिवे बा आउ कोन दरकार हबो ता सेगुडा का भी कहबो ना केयरफुली सिलेक्ट then आशी lesson plan or period plan a lesson may be defined as that portion of the content that is sufficient for teaching in one period तो गोटे पीरियड रे केते जो सब्जेक्ट बा जो यूनिट अछि तारो गोटे पीरियड रे केते कंटेंट से पढ़ाई परिवे केते अमाउंट रो कोन इंफॉर्मेशन तुमको दे परिवे सेटा होचे गोटे लिस्ट द प्लान prepared by the teacher to teach a lesson from a sub unit is taken from the plan prepared by the teacher to teach a lesson for the sub unit is taken from a unit तो से कोचे के गोटे लेसन टे माने को लेसन टे टीचर जेतेबल टीचर गोटे लेसन पढ़ेबा को डिसाइड करिवे तो ता पई जो प्लान बनेबे लेसन प्लान बनेबे सेटा कोन ना जो यूनिट गुडा को जो डिवाइड हेतबो सब यूनिट से भितर गोटे यूनिट से भितर डिसाइड करिवे जे को लेसन ऊपर पढ़ेबे एडवांटेजेस कोन टू अचीव द सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो गोटे सब्जेक्ट पढ़ेबार जहाँ गोल आ ऑब्जेक्टिव रोचे ताको अचीव करबा टू मेक द टीचिंग ऑफ द लेसन इंटरेस्टिंग जेहेतु ताको स्मॉल स्मॉल पार्ट रे डिवाइड करा होची सब लेसन पे प्लान बना होची तो टीचिंग टा कोन हो ना इंटरेस्टिंग हो टीचर ट्राई करबे ताको इंटरेस्टिंग करिया जोदारे कि अल्टीमेटली इंटरेस्टिंग हे करियो हम्म to avoid wastage of time and energy तो टाइम और एनर्जी को केमती वेस्ट टाइम और एनर्जी रे केमती वेस्ट ना हबो then teacher teaches with self confidence तो टीचर जतबे ओटे स्मॉल पार्ट पढ़ौचंती ना गोटे लेसन पढ़ौचंती तो तांकर कोन हो ना से सेल्फ कॉन्फिडेंस से तो पढ़ेबे एति पढ़ेबार अछि से भल से प्रिपेयर करछंती भल से जानछंती with self confidence से पढ़े पारे helps to provide systematic evaluation
तो या द्वारा कौन हुए ना सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन फाइबर हेल्प करते हैं केती पार्ट पढ़ेले तापर तार इवैल्यूएट कले यूनिट टेस्ट कले कि क्लास टेस्ट नेले कि जो भी टेस्ट नेले ता थ्रू रे सी पार्ट पार्ट वाइज पिलामान को नॉलेज टेस्ट कर परिबे सेते गोटे सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन प्रोवाइड करे थाउ सकाळे से जो सेटा आंसर प्लस सेटा हो हाँ 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 थाउ आणनी सेगुड़ाक ମୁଁ ନେବିନି ନେବିନି ଏମିତି ହିଁ ନେବିନି କଣ 10ଟା ସେଗୁଡା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ହଁ ହଁ ନା हेलो सॉरी एक्चुअली टिके इमरजेंसी थिला तो मुझे डिस्टर्ब होते आ कौन रही कि मैडम कौन क्वेश्चन हो पारिबो ए यूनिट रे हेलो हाँ हाँ कुह आज्ञा मैडम कौन क्वेश्चन हो पारिबो आज जो यूनिट पढ़िले से कौन क्वेश्चन आसी पारिबो तो माइक्रो टीचिंग तो आसो लॉन्ग क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग आउ माइक्रो टीचिंग रो जो साइकिल टा रोची ताको एक्सप्लेन करिया पे 5 मार्क रो आसीबो आ जदी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िबो तो नॉर्मली ताको माने जहा जहा अछि लेखिकी सेतरे माइक्रो टीचिंग साइकिल भी ऐड कर परिबो माने ऐड करिवो ही बट माइक्रो टीचिंग साइकिल गोटे सेपरेट आसीबो माने 5 मार्क आउ जो मैडम स्किल तार गुड़ाक यूज गुडा भी 5 मार्क हो पारिबो जो कंपोनेंट यूज अछि बा ता यूजेस गुडा अछि हेई परिबो बट एते इम्पोर्टेंट नो जदि लास्ट कंटिन्यूअसली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड पढुथो ताहाले ताको स्किप करी मैडम पके बुक दे रे पारे बहुत एक्स्ट्रा देछि तो बहुत अधिका देछि बुक्स रे बुक्स रे तो बहुत अधिका माने बहुत बहुत जिंस रे भी अलगा अलगा भी बहुत थिंग्स अछि उथरे एक्स्ट्रा देछि खाली जदि पारुछ तो रीडिंग मार दियो आसीबो जदि से 5 मार्क के आसीबो आज्ञा और स्किल गुड़ाक भी स्किल गुड़ाक लॉन्ग क्वेश्चन आसबर लॉन्ग क्वेश्चन गोटे आसीबो आ जदि प्लान गुड़ाक पड़े प्लानिंग से गुड़ाक 5 मार्क पड़े मोस्टली से माइक्रो टीचिंग रे जो एक्सप्लेन माइक्रो टीचिंग मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग पचारिबो सेगुडा फास्ट लिखले कि माइक्रो टीचिंग साइकिल बनेइबो साइकिल को टिके डिस्क्राइब एक्चुअली क्वेश्चंस गुड़ाक लिमिटेड तो तुम्हें सिलेक्टिव ही पढ़ी गले तुमको सब माने मो एक्सपीरियंस रो कहूची मु खाली सिलेक्टिव ही पढ़ी गई
କହିଲେ ସେଇଟା ଛୋଟ। ଆମର ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆମର ଆଇସିଟି କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ଲିଙ୍କ କାହିଁ ଗ୍ରୁପରେ ଆସୁନି ତ କେହି ଜଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଇସିଟିରୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ତମେ କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ର? ଶ୍ରୀ ଏଜୁକେସନର। ଶ୍ରୀ ଏଜୁକେସନ ର ଶ୍ରୀତମ ସାର୍ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଥିବେ ନା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ତ ଆଇସିଟିର ଲିଙ୍କ ଆସୁନି ମୁଁ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପଚାରିଦିଅ। ନା ଭାଇ ଆସୁନି। ଆଇସିଟିର ତାର କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ହଉନି ବୋଧେ ନାଇଁ ସବୁ କ୍ଲାସ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍କୁ କହିବା ତାହେଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ମ୍ୟାଥଟା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହୁଁ। ହଁ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ କ୍ଲାସ ପକଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ ବୋଧେ 28 ରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଏତିକିରେ। ହଁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି ଯାଅ ତମର ବି ଅଲଗା ପ୍ରିପାରେସନ କର ଅଲଗା ପଢାପଢି।